Good morning, students. Today we are going to learn about factors. Now, what are factors? A factor of a number divides that number exactly. A factor of a number यानी कि किसी भी नंबर का फैक्टर उस नंबर को exactly डिवाइड करेगा. That means completely डिवाइड करता है यानी रिमाइंडर उसमें क्या आता है? 0. For example, find the factors of 58. So 58 के फैक्टर्स हमें फाइंड करने विल मेक द पेयर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल 1 into 58 is 58. जब हम 1 को 58 से डिवाइड करेंगे विल गेट रिमाइंडर एज 0 एंड क्वोशिएंट एज 58. एंड इफ वी डिवाइड 58 by 58 विल गेट 1 एज क्वोशिएंट एंड 0 एज रिमाइंडर. Thus 58 is divisible by 1 and 58. That means हम 58 को 58 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं. Next pair will be 2 into 29. A factor of a number divides that number exactly. A factor of a number यानी कि किसी भी नंबर का फैक्टर उस नंबर को exactly डिवाइड करेगा. That means completely डिवाइड करता है यानी रिमाइंडर उसमें क्या आता है? 0. For example, find the factors of 58. So 58 के factors हमें find करने will make the pairs. First of all, 1 into 58 is 58. जब हम 1 को 58 से divide करेंगे will get remainder as 0 and quotient as 58. And if we divide 58 by 58, we'll get 1 as quotient and 0 as remainder. Thus 58 is divisible by 1 and 58. That means हम 58 को 58 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं. Next pair will be 2 into 29. अब जब हम 2 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे we'll get 58. So we can say when we are dividing 58 by 2 we are getting quotient 29 and 0 remainder. And when we are dividing 58 by 29 we are getting 2 as quotient and 0 as remainder. That means हम जैसे भी इसे डिवाइड करेंगे जब हमने 2 को 58 से डिवाइड किया हमें 29 क्वोशिएंट मिल रहा है और जब हमने 29 को 58 से डिवाइड किया हमें 2 क्वोशिएंट मिल रहा है. सो वी कैन से 58 is divisible by 2 and 29 यानी हम 2 और 29 दोनों से 58 को डिवाइड कर सकते हैं. That means the factors of 58 are 1, 2, 29 and 58. यहाँ जो भी पेयर्स हमारे पास में बन रहे हैं वो सारे पेयर्स के जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी क्या होंगे 58 के फैक्टर्स होंगे. सो हमारा फर्स्ट जो यहाँ पे पेयर था दैट इज 1 into 58. सेकेंड पेयर इज 2 into 29 और जब भी हम इसे मल्टीप्लाई करें वी आर गेटिंग 58 और जब हम इसे डिवाइड करके चेक करते हैं तब हमारा रिमाइंडर भी क्या आता है 0. दैट मीन्स कि ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. Find the factors of 81. So pairs of numbers which give the product 81 will be 1 into 81 is equals to 81. 3 into 27 will also be 81. 9 into 9 will also be 81. So here 1, 3, 9, 27 and 81 are the factors of 81. See, here 9 is repeating 2 times. So हम 9 को 2 times नहीं लिखेंगे हम 9 को 1 time ही लिखेंगे because 9 into 9 is 81. So यहाँ पे जो भी नंबर रिपीटेड होते हैं हम उन रिपीटेड नंबर्स को ओनली 1 टाइम ही लिखेंगे. दैट मीन्स कि 9 से जब हम 81 को डिवाइड करते हैं वी आर गेटिंग 9 और जब हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं वी आर गेटिंग 81. सो हम 9 को ओनली 1 टाइम लिखेंगे. रिमेंबर 2 थिंग्स हियर. फर्स्ट इज every number has 1 as factor. That means 1 जो है वो सभी नंबर का क्या होता है फैक्टर होता है. फॉर एग्जाम्पल हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट द सेम नंबर. 1 into 12 is 12. 1 into 58 is 58. 1 into 81 is 81. So we are getting the same number while multiplying the number by 1. So 1 is the factor of every number. So
every number has 1 as a factor, यानी हम 1 सभी नंबर का फैक्टर लिख सकते हैं. Second is every number is a factor of itself. That means जो भी नंबर होगा वो खुद अपना भी फैक्टर होता है. फॉर एग्जाम्पल 81 से डिवाइड होता है वन टाइम, 58 से डिवाइड होगा वन टाइम, 12 से डिवाइड होता है वन टाइम. सो every number can be divided by itself. So we can say every number is a factor of itself. Let's take one more example here. Find the factors of 30. So pairs of numbers which give the product 30 will be 1 into 30 is equals to 30, 2 into 15 is equals to 30, 3 into 10 is equals to 30, 5 into 6 is equals to 30. So here factors of 30 are 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30 itself. Dear students, I hope you understood well that what are factors. Factor is a number which exactly divides the given number. Factors वो है जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, यानी कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे जिसका रिमाइंडर 0 आता है. फॉर एग्जाम्पल फैक्टर्स ऑफ 12, सो इट विल बी 1 into 12 is equals to 12, 2 into 6 is equals to 12, 3 into 4 is equals to 12. So factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. जो यहाँ हमने पेयर्स बनाए हैं ये पेयर्स वाले नंबर ही क्या होंगे 12 के फैक्टर्स. और यू कैन सिंपली से कि 12 किस किस की टेबल में आता है वो हमें बताता है कि वो उसका फैक्टर है. और यू कैन से 12 इज डिविजिबल बाय 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. सो 12 जो होगा वो किस किस का डिविजिबल है, किस किस से डिवाइड होता है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 से. So there are two properties of factors. First is a number is a factor of itself. कोई नंबर जो होगा वो अपने आप का ही फैक्टर होता है बिकॉज वो अपनी ही टेबल से डिवाइड भी होता है. Second is one is a factor of every number. That means one सभी नंबर का फैक्टर होता है बिकॉज किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट सेम नंबर. और यू कैन से कि 1 से सारे नंबर्स डिवाइड होते हैं. In exercise 8b, question number 1 is filling the blanks in which we have to find 5 into 6 is equals to 30. So 5 and 6 are dash of 30. So these are factors of 30. Similarly, in B part 6 and 8 are factors of 48. 2, 3, 4, 6 are factors of 12. 3, 5, 9, 15 are factors of 45. But in the last one 144 is dash by 16 and 9. So यहाँ हम लिखेंगे divisible because 144 16 और 9 से divide होते हैं. So 144 is divisible by 16 and 9. You don't have to do question number 2 and 3. Question number 4 is write two factors of the following numbers other than 1 and the number itself. So हमें यहाँ पे टू फैक्टर्स बताने इन सभी नंबर्स के अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी हमें 1 नहीं लेना है और सेम नंबर नहीं लेना है. सो अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ इसके कितने फैक्टर्स होंगे उसमें से हमें टू फैक्टर्स इन सब के बताने हैं. ए पार्ट इज 75. सो एज वी कैन सी दिस इज एन ऑड नंबर. सो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा. लेट्स चेक कि ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं. सो 3 2s are 6, then it will become 15 and in the table of 3 15 comes 5 times. So yes, it is divisible by 3 how many times? 25 times. So we can write it as 3 into 25 is equals to 75. And here we have to find the two factors only. So we can write 3 and 25 are
फैक्टर्स ऑफ 75। आप इसे 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज ये 5 की टेबल से भी डिवाइड हो सकता है. Here in this one B part 84 that is an even number. So let's check कि ये 2 से कितने टाइम्स डिवाइड होता है. So 84 divided by 2, 4 times 8 and 2 times 4. See 42 times 2 से ये डिवाइड होता है. So we will write 2 into 42 is equals to 84. Here 2 and 42 are factors of 84. See हमें यहाँ पे ओनली 2 फैक्टर्स बताने हैं, तो वो 2 फैक्टर्स कोई भी हो सकते हैं जिससे ये नंबर्स डिवाइड होते हो. You can write other than 3 and 25 or 2 and 42. So C part you have to do on your own. In question number 5, we have to find 3 factors of the numbers other than 1 and the number itself. अब यहाँ हमें 3 factors बताने हैं इन numbers के. So you can write it directly. जिसकी टेबल में वो नंबर आता है हम उसके फैक्टर्स डायरेक्ट बता सकते हैं. So for 30 ये 2 से भी डिवाइड होता है बिकॉज ये इवन नंबर है. 3 की टेबल में भी 10 टाइम्स आता है और 5 की टेबल में भी 6 टाइम्स आता है. सो ये 3 फैक्टर्स हो गए इसके. यू कैन राइट 6 ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू राइट बिकॉज 6 into 5 30 होता है. सो हियर वी हैव टू फाइंड 3 फैक्टर्स ओनली. सो विल राइट ओनली 3 फैक्टर्स. सो 2, 3, 5 आर फैक्टर्स ऑफ 30. Similarly in 105. So 105 3 से डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होगा एंड 7 से भी डिवाइड होगा. So 3, 5, 7 are factors of 105. Similarly you have to do B part of this question. In question number 6 A and B part we have to 180 के यहाँ पे फैक्टर्स कौन से हैं. दैट मीन्स 180 और 375 जो क्वेश्चंस दिए हुए उसके हमें ये फाइंड करने की इनमें से कौन से फैक्टर्स होंगे. दैट मीन्स कि वो किससे डिवाइड होते हैं. सो 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर दैट वी ऑल नो. सो 1 दोनों का फैक्टर होगा. देन 180 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होगा. देन ये 4 और 6 दोनों से डिवाइड होगा. 10 की टेबल में भी 180 आता है, 15 की टेबल में भी 180 आता है एंड देन एट लास्ट 180 की टेबल में 180 खुद आएगा. सो अगर आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि कौन सा नंबर इससे डिवाइड है या डिविजिबल है या कौन सा इसका फैक्टर है, सो हम सिंपली रफ कॉपी में इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं कि कम्प्लीटली डिवीजन इनमें से किस नंबर से हो रहा है. सो सिमिलरली यू हैव टू डू फॉर 375. 375 का आपको चेक करना है कि यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. यहाँ हमें इसके सारे फैक्टर्स बताने हैं इन नंबर्स के. सो यू हैव टू डू लाइक दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द पेयर्स. 1 into 10 is equals to 10. In the table of 2 it comes 5 times. देन ये 3 से नहीं डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्टली 5 से डिवाइड होगा. सो वी डोंट हैव टू राइट 5 into 2 अगेन बिकॉज 2 into 5 वी हैव ऑलरेडी रिटन. सो हमें रिपीटेड नंबर्स को वापस नहीं लिखना है. thus 1, 2, 5 and 10 itself are factors of 10. नेक्स्ट 32. 32 के फैक्टर्स हमें यहाँ पे बताने हैं. सो फर्स्ट इट विल बी 1 into 32. It will be 32 only. Then in the table of 2 it comes 16 times. Then 3 से ये डिवाइड नहीं होगा,
In the table of 4, it comes 8 times. 5 से ये divide नहीं होता है. In the table of 6, 6 से ये भी divide नहीं होगा. Then again क्या आ जाएगा? 8 into 4 that we don't have to write. So these are the factors 1, 2, 4, 8, 16 and 32 are factors of 32. Similarly, you have to do B part of this question. So children, this will be your homework. You have to do introduction part of factors. Then question number 4 ABC, question number 5 ABC, question number 7 ABC in notebook, and question number 1, question number 6 A and B parts in your book only of exercise 8B. Thank you.